Welcome to IntelliLearn. I am Nayan Desai. So let's start with the topic, which is nothing but data type and its different types. So what is a data type in C programming? To store value, that is data, inside a variable, first we need to declare and the data type of the variable followed by the variable name. सो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा जो आपके सामने है. सो एग्जाम्पल इज नथिंग बट इंटीजर गोल्स, जहां पे गोल्स हमारा वेरिएबल नेम है और आईएनटी हमारा डेटा टाइप है. सो हमारे डेटा टाइप का काम क्या आहे, आपल्या डेटा टाइप इंटीजरचं काम काय आहे मी इझिली सांगतो. सो इंटीजर या डेटा टाइपचं बेसिक काम आहे टू स्टोर इंटीजर व्हॅल्यूज inside the variable, which is nothing but the goal. So data type is the type of data you will store in the variable. Okay, data type is the type of data, कौन से प्रकार का डेटा आप स्टोर करने वाले हो वेरिएबल में वो बताने वाला है डेटा टाइप. Each data type has its own format, specifier and size. So our data type has its own predefined size and the format specifier used. So how many categories are there in the data types? There are 5 categories of data types in C programming. So it is in front of you. First one is primitive data type, second one is derived data type, third one is enumerated, fourth one is void and fifth one is bool type. If you know about the variables and the data types, which is already given in the part 1, so you must watch the part 1 video so that you will fully understand about the data types and the different types of data types in C programming. So make sure to watch the previous video. So first one, primitive data type in C programming. The C programming language has 4 primitive or primary data types. Okay, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली सी प्रोग्रामिंग ने पहले से ही हमारे डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दिया गया है और उनके साइज स्टोर किए गए हैं. ओके, सो देर आर 4 प्राइमरी डेटा टाइप्स. फर्स्ट वन इज नथिंग बट इंटीजर डेटा टाइप, वेदर it is a positive whole number or a negative whole number, you can store it into the integer data type. Okay, refers to positive and negative whole numbers. अगर आपको पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव होल नंबर स्टोर करने हैं विदाउट डेसिमल्स. विदाउट डेसिमल्स मतलब इट कैनॉट स्टोर परसेंटेज वैल्यूज सच एज 54.6, 99.8. ऐसे वैल्यूज हम उस डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते. सच एज 1, -120, -45, 3400. ये जो वैल्यूज है ये हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं. Okay, second one is nothing but character. So character refers to all the ASCII character sets within single quotation such as A, capital A, etc. So in simple words we can say that character data type में basically हम characters store कर सकते हैं from capital A to Z to small a to Z. आता या कॅरेक्टर्स मध्ये आपण फक्त एकच लेटर नाही तर एकच कॅरेक्टर स्टोर करू शकतो, ह्याच्या पलीकडे आपण काय स्टोर करू शकत नाही. ओके, सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट फ्लोटिंग पॉइंट. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में हम रियल नंबर्स स्टोर करने वाले हैं. रिफर्स टू ऑल द रियल नंबर वैल्यूज और डेसिमल पॉइंट्स सच एज 3.14, 10.09 एंड 5.34. सो ये सब जो वैल्यूज है, अगर ये वैल्यूज आपको वेरिएबल में स्टोर करने हैं, सो यू हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप विच इज नथिंग बट फ्लोट डेटा टाइप. एंड लास्ट वन इज नथिंग बट डबल डेटा टाइप. सो डबल डेटा टाइप में भी सेम वही है, हम वहां पे भी डेसिमल रियल नंबर वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल? सो द डिफरेंस इज नथिंग बट द साइज ऑफ द डेटा. फ्लोट जो हमारा है उसकी साइज है 4 बाइट्स और डबल जो डेटा टाइप है उसकी साइज है 8 बाइट्स. दोघांमध्ये एकच फरक आहे, तो फरक आहे दोघांच्या साइज मध्ये. फ्लोट मध्ये आपण कमी व्हॅल्यू स्टोर करू शकतो, बट डबल डेटा टाइप मध्ये आपण जास्त व्हॅल्यू स्टोर करू शकतो.
So next one is derived data type in C programming. So derived data types are primary data types that are grouped together. अभी मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ. Let's say you have to store multiple values in a single variable for which we are going to use derived data types in C programming. If you want to store multiple values or similar primitive data type, primitive मतलब सेम टाइप के डेटा टाइप, वी यूज डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग. ओके, अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करने हैं एक वेरिएबल में सी प्रोग्रामिंग में, सो इसके लिए हमें डिराइव्ड डेटा टाइप का यूज करना पडेगा. जर आपल्याला एक पेक्षा जास्त व्हॅल्यूज स्टोर करायची असतील व्हेरिएबल्स मध्ये तर आपल्याला डिराइव्ड डेटा टाइप ह्याचा वापर करावा लागेल. सो द फॉलोइंग डिराइव्ड डेटा टाइप आर एज फॉलोज. First one is array, second one is pointers, third one is structure, and fourth one is union. If you have any doubts, please comment down in the comment section below. First one, array in C programming. Array is a data type in C programming which store multiple values of similar data type. So array is nothing but a data type in C programming जिसका काम है मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना एक सिंगल वेरिएबल में. सो एग्जांपल इज इफ यू वांट टू स्टोर सब्जेक्ट मार्क्स, वी कैन क्रिएट एन एरे नेम्ड एज सब्जेक्ट मार्क्स विच विल स्टोर 6 सब्जेक्ट मार्क्स वैल्यूज. अगर आपको सब्जेक्ट मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप 6 वेरिएबल्स क्रिएट करने की बजाय एक एरे क्रिएट कीजिए. उस एरे का नाम रहेगा सब्जेक्ट मार्क्स आणि त्या सब्जेक्ट मार्क्स एरे मध्ये तुम्ही 6 सब्जेक्ट मार्क्सचे व्हॅल्यूज स्टोर करू शकता. सो सिंटॅक्स ऑफ एन एरे इज डेटा टाइप एरे नेम स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन साइज स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज विथ फॉलोड बाय अ सेमीकोलन. एग्जाम्पल इज नथिंग बट इंटीजर सब्जेक्ट मार्क्स 6. सो यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स एरे का नाम है एंड द साइज इज 6. इसका मतलब ये हुआ, ह्याचा अर्थ हे झाला की आपण सब्जेक्ट मार्क्स ह्या एरे मध्ये 6 व्हॅल्यूज स्टोर करू शकतो. सो नेक्स्ट वन इज पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग. सो व्हॉट इज अ पॉइंटर? द पॉइंटर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सो दिस इज द डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग विच इज नथिंग बट अ पॉइंटर. सो पॉइंटर डेटा टाइप क्या काम करता है? Okay, so it stores the address of another variable. Another variable के एड्रेस को स्टोर करने का काम हमारा पॉइंटर डेटा टाइप करता है. अ पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल. सो आता जर तुम्हाला दुसऱ्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोर करायचा असेल, सो त्यासाठी तुम्हाला पॉइंटर डेटा टाइप हे डिक्लेअर करावं लागेल. A pointer can store the address of variables of any data type. So basically तुम्ही जेव्हा पॉइंटर डेटा टाइप डिक्लेअर कराल त्याच्या आत तुम्ही कोणत्याही डेटा टाइपच्या व्हेरिएबलचं ऍड्रेस स्टोर करू शकता. ओके, सो यू कॅन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप ऍड्रेसेस इनसाइड द पॉइंटर वेरिएबल. अ पॉइंटर विथ नो एड्रेस इज कॉल्ड एज नल पॉइंटर. ओके, सो एक पॉइंटर है जिसमें एड्रेस नहीं है वेरिएबल का, उसे हम कहेंगे नल पॉइंटर. अ पॉइंटर विथ नो डेटा टाइप इज अ वॉइड पॉइंटर. लेट्स से हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया, उस डिक्लेरेशन में ओके, सो जो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप लेट्स से हमने डिक्लेयर नहीं किया गया है, सो इट इज नोन एज वॉइड पॉइंटर. जर त्या पॉइंटर डेटा टाइपला आपण कोणताही डेटा टाइप डिक्लेअर केला नसेल, सो आपण त्याला वॉइड पॉइंटर असं म्हणणार आहे. सो सिंटॅक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू. डेटा टाइप asterisk symbol. Okay, the star symbol is nothing but an asterisk symbol followed by the pointer name. So example is in front of you, integer star temp. So temp is the pointer variable which is of data type integer. The third type of data type is enumerated data type in C programming. So enumerated data types are user defined data types that consist of integer values. Okay, so these are the data types which are user defined.
जिसे यूजर ने डिफाइन किया गया है, इसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहेंगे। सो एन्यूमरेटेड डेटा टाइप ये एक टाइप है जो यूजर डिफाइंड टाइप है। इट मीन्स दैट यूजर्स आर गोइंग टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स and give them the values that is nothing but the sizes. Okay, so they are used to make a program more readable, flexible and maintainable. As we are going to create our own user defined data types, that's why it is more readable, flexible and maintainable. We use the keyword enum to declare new enumeration type in the C programming language. सो आता आपण जेव्हा इनम डेटा टाइप डिक्लेअर करणार आहे तेव्हा आपण इनम कीवर्डचा यूज करणार आहे. सो सिंटॅक्स तुमच्या समोर आहे. सिंटॅक्स इज नथिंग बट इनम कीवर्ड फॉलोड बाय फ्लैग नेम. सो यू कैन राइट द फ्लैग नेम सेम एज द वेरिएबल नेम और एरे नेम. आपको जैसा भी नाम चाहिए आप फ्लैग नेम को भी दे सकते हो. देन ओपन कर्ली ब्रेसेस, constant1, constant2, constant3 and if you want as many constants you can write the name of the constants inside the curly braces. So constants basically क्या करने वाला है. Okay, so example is in front of you. Example is enum week Sunday, Monday, Tuesday till Saturday. So basically इधर क्या होने वाला है, हमारे एक एक कांस्टेंट में वैल्यूज स्टोर होगी. सो इन सिंपल वर्ड्स, संडे कांस्टेंट में हमारा 0 वैल्यू स्टोर होने वाला है. मंडे ह्या कॉन्स्टंट मध्ये आपलं 1 व्हॅल्यू स्टोर होईल. ट्यूजडे ह्या कॉन्स्टंट मध्ये 2 व्हॅल्यू स्टोर होईल अँड सो ऑन. सो दिस इज नथिंग बट एन enumerated data type in C programming. I hope you understood the concept of what is data type and types of data types in C programming. If you have any doubts, post them in the comment section. Don't forget to like, comment and subscribe the channel. Thank you.